Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss section 115 and 116 of Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023. So, section 115 deals with a presumption as to certain offences, and section 116 deals with birth during marriage is a conclusive proof of legitimacy. So, these two sections we will discuss in this particular lecture. तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सेक्शन 115, द प्रीवियस सेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड लेक्चर्स हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। अभी हम प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन 115 डील्स विथ प्रिजम्पशन एज टू सर्टन ऑफेंसेस। देखिए प्रोविजन क्या है। वेयर अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, if there is accusation leveled against the accused person for any offense which is specified in subsection 2 of section 115, अगर कोई पर्सन पे एक्यूजेशन है, उस पे चार्जेस है या उस पर ऑफेंस किया ऐसा कहा गया है, कौन से ऑफेंस जो आगे चल के हम सेक्शन 115 के सब क्लॉज 2 में देखेंगे। इन वो ऑफेंस उसने कहाँ किया, इन एनी एरिया declared to be disturbed area under any enactment for the time being in force, making provision for the suppression of disorder and restoration and maintenance of public order. Suppose if any area has been declared as a disturbed area by any enactment for the time being in force, and for what purpose that area is declared as a disturbed area, to maintain the public peace and to maintain the public order in that particular area. तो अगर कोई एरिया किसी लॉ के जरिए डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, वो इसलिए कि वहां पर जो डिसऑर्डर है या पब्लिक ऑर्डर को वापस से रिस्टोर करने के लिए अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है, ऐसे एरिया में अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है, कौन सा ऑफेंस, वो सबसेक्शन 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोई डिस्टर्ब्ड एरिया एक जो इनैक्टमेंट के जरिए डिक्लेयर किया हुआ है। सेकंड वन इज any area in which there has been over a period of more than 1 month extensive disturbance of public peace is there. Suppose if there is a disturbance of a public peace for more than 1 month in that particular area, then in that area also if a person commits any offense which is specified in subsection 2, बात ध्यान में रखिए कि पहला तो वो एरिया है जो डिस्टर्ब्ड एरिया किसी लॉ के जरिए डिक्लेयर किया हुआ है, दूसरा वो एरिया है जिसमें 1 महीने से ज्यादा अगर डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस है। तो ऐसे एरिया में अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो सबसेक्शन 2 में है, बात ध्यान में रखिए, एंड इट इज शोन दैट such person had been at a place in such area at a time when firearms or explosive were used at or from that place to attack or resist the members of any armed force or forces charged with the maintenance of public order acting in the discharge of their duties, it shall be presumed unless the contrary is shown that such person had committed such an offense. Suppose if in that particular disturbed area, if the firearms or explosive has been used against the military, against the armed force, which who are trying to maintain the public order in that area, and if any person shown that such person had been at a place in such area, that it shall be presumed unless the contrary is shown that such person had committed such offense. तो सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस करता है जो सबसेक्शन 2 में है और वो ऐसे एरिया में करता है जो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है लॉ के जरिए, या ऐसा एरिया जहां पर 1 महीने से ज्यादा पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो चुका है और वो एरिया में अगर फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव यूज होते हैं, किसके अगेंस्ट में, आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट में, जिनको वहां पर तैनात किया हुआ है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट में कोई
एक्सप्लोसिव या फायर आर्म्स यूज होते हैं और कोई पर्सन वहां पर मौजूद है उस एरिया में, उसने वो फायर आर्म्स यूज किया, एक्सप्लोसिव यूज किया, इमटेरियल, अगर वो उस वक्त वहां पर उस एरिया में मौजूद था तो प्रिजम्पशन क्या रहेगा सेक्शन 115 में, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन दैट सच पर्सन हैड कमिटेड सच ऑफेंस। तो प्रिजम्पशन ये शैल प्रिज्यूम है कि कोर्ट प्रिजम्पशन ये लेगा कि उसी पर्सन ने वो ऑफेंस किया है, अनलेस कॉन्ट्ररी इज शोन। अगर अक्यूज्ड के पास उसका इनोसेंस प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस है तो इट्स ओके, अदरवाइज प्रिजम्पशन क्या है कि उसी पर्सन ने वो ऑफेंस किया है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया में अगर कोई पर्सन वहां पर रहता है और उस एरिया में फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव यूज होते हैं मिलिट्री के अगेंस्ट में, तो प्रिजम्पशन ये है कि उसी पर्सन ने ऑफेंस किया है। अब सिचुएशन ये है कि कौन सा ऑफेंस, सबसेक्शन 2 डील्स विद द ऑफेंसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 आर the following, namely the first one is an offense under section 147, section 148, section 149 और section 150 of भारतीय न्याय संहिता 2023। अब ये सेक्शंस, अगर ये सेक्शन में ऑफेंस होते हैं तो प्रिजम्पशन है, बात ध्यान में रखिए। अब सेक्शन 147 है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वेजिंग वॉर है। सेक्शन 148 ये कहता है कि कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर। सेक्शन 149 ये कहता है कलेक्टिंग फायर आर्म्स और एनी वेपन फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर। एंड सेक्शन 150 डील्स विथ द कंसीलिंग ऑफ वेजिंग वॉर, कि वेजिंग वॉर को छुपाना, वेजिंग वॉर करना या वेजिंग वॉर की कॉन्स्पिरेसी करना या वेजिंग वॉर के लिए फायर आर्म्स कलेक्ट करना या वेजिंग वॉर जो पर्सन कर रहे हैं उनको कंसील करना। अगर ये चारों सेक्शन में से कोई भी सेक्शन अगर अट्रैक्ट होता है तो वो पर्सन जो वहां पर मौजूद था उस एरिया में, डिस्टर्ब्ड एरिया में, वो ऑफेंस उसी ने किया, ऐसा प्रिजम्पशन सेक्शन 115 में होगा। सेकंड वन इज criminal conspiracy or attempt to commit or abatement of any offense under section 149 and section 150 of भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अगर किसी पर्सन को फायर आर्म कलेक्ट करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा कोई पर्सन, या फायर आर्म कलेक्ट करने का अटेम्प्ट किया होगा या उसका अबेटमेंट किया होगा, या सेम कलेक्ट जो पर्सन ने ऑफेंस किया उसको कंसील करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा, छुपाने की, या वो अटेम्प्ट किया उसने या कमिट किया, वॉट एवर इट मे बी, तो इसमें भी प्रिजम्पशन वही है कि उसी पर्सन ने ऑफेंस किया अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। तो अगर ये सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं तभी सेक्शन 115 में कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये सेक्शन 115 था। अब सेक्शन 116 क्या है देखिए, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। देखिए, द फैक्ट that any person was born during the continuance of valid marriage between his mother and any man, or within 280 days after its dissolution the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man. So if any child has begotten when the marriage of a man and woman was in subsistence, or if the child has begotten within 280 days from the dissolution of marriage, and if in that particular period the mother remain unmarried, then it shall be the conclusive proof that he is the legitimate son of that man. तो बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो कब पैदा हो रहा है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ के मैरिज सबसिस्टेंस में थी, मैरिज कंटिन्यूअस में थी। ड्यूरिंग द मैरिज अगर कोई इशू होता है तो वो लिजिटिमेट ही माना जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ है, उसकी लिजिटिमेसी फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। या अगर मैरिज डिसॉल्व होती है, डिवोर्स हो गया फॉर एग्जांपल, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद 280 डेज के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है और उस दौरान वो जो लेडी है जिसको डिवोर्स हो चुका है उसने मैरिज नहीं की है, तो वो भी उस सिचुएशन में भी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी है कि वो चाइल्ड लिजिटिमेट है, ऐसा माना जाएगा। अलग से उसकी लेजिटिमेसी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर एट एनी टाइम व्हेन ही कुड हैव बीन बिगॉटन। अब अनलेस की बात हो रही है यहां पर। अब बात ध्यान में रखिए कि इफ द हस्बैंड प्रूव्स दैट when that particular child has begotten, I had no access with my wife, I had not maintained any physical relation with my wife,
then definitely the legitimacy will not be proved under such a circumstances. तो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी कब है कि अगर 280 डेज के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है या मैरिज कंटिन्यूअस में बच्चा पैदा होता है तो लेजिटिमेसी है। लेकिन अगर हस्बैंड ये प्रूफ करता है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ उस दौरान उस पीरियड में उसका उसके वाइफ के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन बना ही नहीं था, एक्सेस ही नहीं था उसका वाइफ को, तो वो चाइल्ड लेजिटिमेट माना नहीं जाएगा। मतलब हस्बैंड को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका एक्सेस उसके वाइफ के साथ उस पीरियड में नहीं था। अगर उसने प्रूफ कर दिया तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, अगर वो प्रूफ नहीं कर सका तो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी है सेक्शन 116 में। तो ये था सेक्शन 115 और 116 जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।